So we want to first of all say thank you to the Lord तो सबसे पहले हम प्रभु को धन्यवाद कहना चाहते हैं because He is the best and the greatest Father world can ever have. क्योंकि संसार जो इसके पास हो सकता है वो सबसे उत्तम और महान पिता वही है। So we also want to celebrate all our biological fathers. तो हमारे सारे शारीरिक पिता उनका भी हम उत्सव मनाना Let's चाहते हैं। give them a big hand. I Ayo. thank God for my dad. मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ मेरे पिताजी के लिए। Wow. Yeah. And praise God, of course, your spiritual fathers also. और प्रभु का धन्यवाद हो आत्मिक पिताओं के लिए भी Yeah. आपके। So I want to talk to you about not good fathers, but great fathers. मैं आपसे जो है बात करना चाहता हूँ अच्छे पिता नहीं लेकिन महान पिता के बारे में। Yeah. And I pray, और मैं प्रार्थना करता हूँ all you biological fathers, you may become great fathers. आप जो शारीरिक पिता हो आप महान पिता बन सकते हो। You know, Esau and Jacob, they kept fighting. एसाव और याकूब जो है लड़ते रहे, Both are brothers, दोनों भाई है, but they fought. लेकिन वो लड़ते रहे। But after 20 years, लेकिन 20 साल बाद God gave them victory. परमेश्वर ने उन्हें विजय दी। How many months we have now? कितने महीने बचे हमारे 6 पास अभी? months, no? 6 महीने। Yeah, God is going to do something in your families, among brothers, sisters. प्रभु आपके परिवार में कुछ करने वाले, भाई के बीच में, Yeah. बहन के बीच में। Wow. And I'll be very happy. और मैं तो बहुत खुश होऊंगा। One Sunday you'll come with your biggest enemy. एक रविवार को आपके सबसे बड़े शत्रु के साथ आप आओगे। Yeah, that's maybe your brother. वो शायद आपका भाई हो सकता है। You know, Jesus says your greatest enemy is in your home sometimes. आपको पता है यीशु ने कहा कभी कभी तेरा सबसे बड़ा शत्रु तेरे घर में ही होता है। Yeah. And I pray, और मैं प्रार्थना करता a हूँ Sunday will come ऐसा रविवार आएगा where both of you will come जहाँ आप दोनों आओगे to worship the living God. जीवित परमेश्वर की आराधना करने के लिए Give a testimony और गवाही देने के लिए that God is good. कि प्रभु भला है। Yeah. Let me talk to great fathers. महान पिताओं से मुझे बात करने Yeah, दो। you may say, but I'm just a child. आप कहोगे मैं तो अभी बच्चा हूँ। No problem. कोई बात नहीं, You will also learn something. आप भी कुछ सीखोगे। Nobody is saying an amen over there. कोई आमीन नहीं कह रहा है, You'll also learn. आप भी सीखोगे। Okay, so you all know this beautiful story called the prodigal son. आप सब ये कहानी जानते हो, उड़ाऊ पुत्र की कहानी। It's a famous story. ये बहुत मशहूर कहानी So है, it's going to be very easy for me तो to. मेरे लिए बहुत आसान होने वाला So है। when I say something, you should encourage me. तो जब मैं कुछ कहूंगा तो आपने मुझे उत्साहित करना है। यस, And the fathers, पिता जो है, if you are struggling, यदि आप संघर्ष कर रहे हो don't worry. चिंता मत करो, Your struggle is going to stop and God is going to help you. आपका संघर्ष रुकने वाला है और प्रभु आपकी मदद करने वाले हैं। Yeah. The first beautiful quality of a great father is, महान पिता की सबसे पहली सुंदर गुण जो है, yeah, a father is available for his children. पिता जो है अपने बच्चे के लिए उपलब्ध होता है। कोई आमीन नहीं बोल रहा है. You know what God said? पता है प्रभु ने क्या कहा? Call upon my name मेरे नाम को पुकारो and I will answer you. और मैं तुम्हें जवाब दूंगा। Wow, what a God we have. कितना महान परमेश्वर हमारा What है, an amazing father we have. कितना अद्भुत पिता हमारा है। Jeremiah 33 verse 3 says, call upon me. यिर्मयाह 33 में 3 कहता है मेरे नाम को पुकारो, I will definitely answer you. मैं निश्चित रूप से तुम्हें जवाब दूंगा। Who is a great father? महान पिता कौन है? Who is available for his child. जो अपने बच्चे के लिए उपलब्ध रहता है। I pray all the biological fathers, मैं प्रार्थना करता हूँ सारे जो शारीरिक पिता है, I pray मैं प्रार्थना करता हूँ that God will give you grace कि प्रभु आपको अनुग्रह देंगे in your work, in the midst of all your work, आपके सारे काम के बीच में, in the midst of all your busyness. आपके सारे व्यस्तता के बीच में। I pray मैं प्रार्थना करता हूँ God will give you some beautiful time so that you can give some good time to your children and your family. मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर आपको कुछ सुंदर समय दे ताकि आप आपके बच्चे और परिवार के लिए वो सुंदर समय दे सको। Can I hear an amen? आमीन। Yeah, I want you to write this. मैं चाहता हूँ इस बात को लिख कर लीजिए आप। Be available for your child. अपने बच्चों के लिए हमेशा उपलब्ध रहो। Amen नहीं बोल रहे हो. Let me say one more thing. और एक बात कहने दो, When you are available, be attentive to your child. जब आप उपलब्ध हो अपने बच्चों के ऊपर ध्यान देते रहो। वे आमेन नहीं बोल रहा है. हाँ? पत्नी पे भी देना है और बच्चों पे भी देना है. यस, Be available, उपलब्ध रहो, be attentive, ध्यान दो। and listen. Now I'm going to say something. अभी मैं कुछ कहने वाला वो सुनो। Your children should be able to approach you. आपके बच्चे आप तक पहुंचने चाहिए। आमेन नहीं बोल रहे हो. आमीन नहीं बोल रहे हो आप।
So your posture and your face should have a welcoming attitude towards your children. तो आपका शारीरिक हाव भाव और आपके चेहरे पर जो है आपके बच्चे के लिए आमंत्रण करने वाला ऐसा व्यवहार होना चाहिए. You know, don't be a Hitler to your child. अपने बच्चे के लिए हिटलर मत बनो. Be Jesus for your child. अपने बच्चे के लिए यीशु बनो. You know, मर्दानगिरी ये नहीं होती है. You know who's a real man? आपको पता है सच्चा व्यक्ति कौन है? Jesus. यीशु. Come on. यस. You know, small children were trying to come to Jesus. छोटे बच्चे यीशु के पास आने की कोशिश कर रहे थे. Mothers were trying to push them. माँ कोशिश कर रहे थे उन्हें ढकेलने की. All the disciples were, hey, पीछे हो जाओ, पीछे सारे शिष्य कहने लगे पीछे हो जा. hey, पीछे हो जाओ. Jesus said, Nathan, come. यीशु ने कहा उन्हें आने दो. Took them in his arms, अपनी बाहों में उन्हें लिया. blessed them, उन्हें आशीष दिया. kissed them on their forehead, उनके माथे पर चूमा and said to them, और उनसे कहा do well, go. अच्छा करो जाओ. May you be like a Jesus to your children. होने आपके बच्चों के लिए आप यीशु के जैसे बनो. May your countenance, may your posture be a posture of delight for your child. होने तो आपका चेहरे का हाव भाव आपका शारीरिक हाव भाव आपके बच्चे के लिए प्रसन्नता की बात बने. Yeah. Your child should not think, जाओ क्या नको. आपके बच्चे ने ऐसा नहीं सोचना चाहिए जाओ कि नहीं. Your child should always say, आपके बच्चे ने हमेशा कहना चाहिए no problem, कोई समस्या नहीं. anytime. कभी भी My dad is always open for me. मेरा पिताजी हमेशा मेरे लिए खुला है. And please learn to have a yes face. और कृपा करके हाँ वाला चेहरा रखना सीखो. नहीं तो कोई पापा हमेशा ना, तो बच्चा बोलता जाने दे, अपने को पता है क्या होने वाला. Nobody is saying an amen. What happened? कोई आमीन नहीं कह रहा है. I know there are times we have to say no, but your face should be a yes face. मैं जानता हूँ कभी कभी हमें ना कहना पड़ता है लेकिन आपका चेहरा जो है ना उस पे हाँ दिखना चाहिए. So this prodigal son, तो ये जो उड़ाऊ पुत्र है. yeah, small boy, not a small boy, he was grown up. छोटा लड़का नहीं था बड़ा था वो. Yeah, so he went to his dad one day. एक दिन अपने पिताजी के पास गया. In Luke chapter 15 लूका 15वें अध्याय में and verse 12, वचन 12 he went and he spoke to him. वो गया और अपने पिताजी से बात करने लगा. Why he could speak? क्यों बात कर पाया पता है? Because the father was available. क्योंकि पिताजी उपलब्ध थे. Why he could speak? क्यों बात कर पाया? Father was attentive. पिताजी ध्यान दे रहे थे उसको. Why he could speak? क्यों बात कर पाया? Because he was approachable. क्योंकि वो उन तक पहुंच सकता था. कोई आमीन नहीं बोल रहा है. और आपको पता है इसके दिमाग में क्या था? प्रॉपर्टी चाहिए था उसको. You think about it, how much that father must be approachable. आप सोचो इसके बारे में वो पिताजी कितना उन तक पहुंचा जा सकता था. Yeah, even the son knew. बच्चा भी जानता था. If I even take this report and go to him with this request, yet I know I can approach my dad. यदि मैं ये जो विनती लेकर मैं उनके पास जाऊंगा तो भी मेरे पिताजी तक मैं पहुंच सकता हूं. ये वो जानता था. Can I hear an amen? Number one, पहला नंबर, great fathers are always approachable fathers. महान पिता जो है हमेशा उनके बच्चे उन तक पहुंच सकते ऐसे पिता होते हैं. Oh, I don't know what I gave you. Available. No. उपलब्ध होते हैं वो. Number two, दूसरा, great fathers are very generous fathers. महान पिता बहुत उदारता से भरे पिता होते हैं. Is there anybody who can say, you asked your dad 1,000 rupees, your dad gave you 2,000? क्या Anybody? कोई ऐसा जो कह सकता है आपके पिताजी से आपने 1,000 रुपए मांगे उन्होंने 2,000 दे दिया आपको? I pray all the biological fathers over here, you will be generous towards your father, towards your children. Sorry. मैं प्रार्थना करता हूं जितने भी शारीरिक पिता यहाँ पर है आप आपके बच्चों के प्रति उदारता से भरे पिता बनो. Can I say something? मैं कुछ कहूँ आपको? Fathers, learn to shock your children. पिताओं अपने बच्चों को झटका देना सीखो. Good shock. अच्छे झटके. The shock should be so much so that when they see the shock, they should keep jumping and say, wow, what a dad, what a dad. झटका इतना भारी होना चाहिए कि जब वो झटका सहे तो हिलने चाहिए और कहना चाहिए कितने अद्भुत पिता है. Tell me, is your father generous? मुझे बताओ क्या आपके पिता उदारता से भरे स्वर्ग के पिता? Okay. You know John 3:16 ना? आपको यूहन्ना 3:16 पता है ना? By heart. मुंह ज़बानी है. For God so loved the whole world that he कि परमेश्वर ने पूरे जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने दिया. his only beloved son. अपना एकलौता पुत्र दिया. You know what he gave? पता है उन्होंने क्या दिया आपको? Best. सबसे उत्तम. You know what he gave? पता है क्या दिया उन्होंने? That thing which will meet your need. वो चीज जो आपकी जरूरत पूरी करेगी. You know what he gave? पता है उन्होंने क्या दिया आपको? He told the whole world, you're
value. उसने सारे संसार को आपका मूल्य बताया। Your Father in heaven is a generous giver and nobody can beat him. आपका जो पिता स्वर्ग में वो उदारता से भरा हुआ व्यक्ति है और कोई उसे उसमें हरा नहीं सकता। And who are you? और आप कौन हो? In Christ, मसीह यीशु में you are a child of आप God. परमेश्वर के बच्चे हो। In Christ, मसीह यीशु में you are a daughter of God. परमेश्वर की बेटी हो। Learn to imitate him. उसका अनुकरण करना सीखो। When your child says, "What a dad God has given me," जब आपका बच्चा कहता है कितना अद्भुत पिता प्रभु ने मुझे दिए हैं, you tell him, आप उनसे कहो ये सब वहां से दिया, मैं दे रहा हूं, इतना ही है। आमेन। If you are blessed by your heavenly Father, I want to tell you, even your children will be blessed by you. यदि आपके स्वर्गीय पिता के द्वारा आप आशीषित हुए हो तो मैं आपसे कहना चाहता हूं आपके बच्चे भी आपके द्वारा आशीषित जरूर होंगे। जरूर होगे। You with me? Okay. मेरे साथ हो आप? अच्छा, now let's look at the request of this son. अभी इस बच्चे की विनती देखते हैं। You're all ready? आप तैयार हो? सब लोग ready है ना? Okay. Okay. Luke 15 verse 12. लूका 15 में 12। Okay. So the young one said to him, तो छोटे बेटे ने उससे कहा, "Yeah, give me the share of your property now." आपकी जो संपत्ति है उसमें से मेरी विरासत मुझे दे दो। Now. अभी दे दो, Yeah, not after you die. आप मरने के बाद नहीं। Then it says, फिर आगे कहता है, so the father divided the property. तो पिता ने जो है संपत्ति को बांटा। Wow. You know what is happening? पता है क्या हो रहा है? Yeah, the son is making a request which is very serious. बेटा ऐसी विनती रख रहा है जो बहुत गंभीर बात है, But the father लेकिन पिताजी जो है is a very generous father. वो बहुत उदारता से भरे पिता है। आमेन। Okay. Everybody with me? सभी लोग मेरे साथ हो? All the fathers should know that their children have a very precious gift which is called the power to choose. सारे पिताओं को ये पता होना चाहिए कि उनके बच्चों के पास एक बहुत बहुमूल्य जो है तोहफा है जिसे कहते हैं चुनने का चुनाव। तुम्हारे परिवार में जो झगड़े चल रहे हैं ना, वो अभी बंद हो जाएंगे अगर आपको समझेगा तो। मैं Every child has the power to choose. हर एक बच्चे के पास वो चुनने का सामर्थ्य है। आदम को दिया ना प्रभु ने? आदम को दिया या नहीं? उसने क्या चुना? नहीं, मुझे खाना ही है। खाना ही है। प्रभु ने बोला ठीक है, खा ले, कोई प्रॉब्लम। See, life is not about what you are saying. जीवन जो आप कह रहे हो उसके बारे में नहीं है। Everybody has a choice. हर एक के पास चुनाव है। Yeah, that's why there is pain. इसलिए दर्द है। हाँ, कोई आमेन। Will there be pain? क्या दर्द होगा? Yeah. हाँ। नहीं तो शादी मत कर। कोई आमेन नहीं बोल रहा है और घूमते रहे ऐसा, दूसरों के परिवारों को देखते देखते चुपचाप शादी कर ले। कोई आमेन नहीं बोल रहा है। आमेन। तकलीफ होगा क्या? होगा। दर्द होता है क्या? होता है। और जब दर्द होता है ना, ये मुझे इतना ही बताता है कि तू जिंदा है। आमेन। कम ऑन, कम ऑन। मरे हुए लोगों को कुछ नहीं होता है, जो जिंदा होता है ना उससे ही दर्द पाया जाता है। He only knows. वो ही जानता है उसे। So father is listening. तो पिता सुन रहा है। हाँ, he says I want the share. उसने कहा जो मेरा हिस्सा है मुझे चाहिए। Before you die. आप मरने से पहले। तो मांगने के द्वारा वो क्या कह रहा है? बेटा कि आप मेरे लिए मर गए हो। फिर भी पापा ने क्या बोला? ले ले। आमेन। फिर भी पापा ने बोला ले ले। पास्टर आप रहते तो आप क्या करते? मैंने भी बोला था ले ले, क्योंकि मुझे झगड़ा नहीं करना है। हम लोग क्या कहते हैं ना, मैं तुझे देने नहीं वाला हूं, मरने तक मैं तुझे नहीं दूंगा और तुझे भी मारूंगा। मैं मरूंगा और मेरे साथ मैं तुझे भी मारूंगा। ये बॉलीवुड का फिल्म, यीशु का फिल्म ऐसा नहीं है। आमेन। Come on. It doesn't work. ऐसे काम नहीं होता है। It doesn't work. ऐसे नहीं काम चलता। Fathers are generous. पिता उदारता से भरे होते हैं। बाजू वाले को बोलना रॉयल रहने का रे, रॉयल रहने का, राजकीय रहना है। रॉयल रहने का। थोड़ा जोर से बोलो, रॉयल रे, रॉयल रे।
Did Jesus say, if somebody asks you for shirt, what should you give? क्या यीशु ने कहा कि यदि कोई तुम्हें शर्ट मांगे तो तुमने क्या करना चाहिए? Coat भी दे दे. कोट भी दे दो. 3, number 3. तीसरा नंबर, Oh, great fathers, they respect their children. महान पिता जो है अपने बच्चों का आदर करते हैं. Wow. They respect their वो children. अपने बच्चों का आदर करते हैं. Yes, Proverbs 22 verse 6. नीति वचन 22 में 6. Oh, Proverbs 22 verse 6. नीति वचन 22 में 6. Train up your child अपने बच्चे को प्रशिक्षण दो in the way he should go, जिस मार्ग से उन्होंने जाना उसमें, that when he grows, ताकि जब वो बड़ा होगा he will follow the Lord. वो प्रभु का पीछा करेगा. आमीन. Are you with me? क्या आप मेरे साथ हो? Okay, now this father in the story, अभी ये कहानी में जो पिता है, yeah, did he train his son? क्या उन्होंने अपने बच्चों को प्रशिक्षण दिया? I believe yes. मैं विश्वास करता हूँ हाँ. Yes. हाँ. But what happened to the son? लेकिन बच्चे के साथ क्या हुआ? कभी कभी टेढ़ा होता है बच्चे. यस. कोई आमीन नहीं बोल रहे. बाजू वाले को बोलना, तू भी टेढ़ा था या टेढ़ा है या टेढ़ा है. And God loves the टेढ़ियास. और प्रभु जो टेढ़े हैं ना उनसे प्यार करते हैं. कोई आमीन नहीं बोल रहा है. See, Jesus loves the टेढ़ियास. टेढ़े लोगों से यीशु प्यार करते हैं. He never gives up on the टेढ़िया. वो टेढ़े लोगों पर कभी हार नहीं मानते. आमीन. You know who were the friends of Jesus? आपको पता है यीशु के दोस्त कौन थे? Tax collectors. चुंगी लेने वाले. टेढ़िया. टेढ़ा. Prostitutes. व्यभिचारी. टेढ़िया. टेढ़ा. Sinners. पापी. टेढ़िया. टेढ़े. Jesus says, I love them. यीशु ने कहा मैं उनसे प्यार करता I हूँ. will not leave them. मैं उन्हें छोड़ूंगा I नहीं. will work on मैं them. उन पर काम करूंगा. I will finish my work on them. मैं मेरा काम उन पर पूरा करूंगा. Tell your neighbor, there is hope for you. अपने टेढ़िया. पड़ोसी से कहना आपके लिए आशा है. बोलना टेढ़िया, hope is there for you. बोलना टेढ़ा आपके लिए आशा है. How many of you know Jacob? कितने लोग याकूब को जानते हो? The master टेढ़िया. सबसे महान टेढ़ा. He got doctorate in टेढ़ापन. उसे डॉक्टरेट मिला टेढ़ेपन में. Then God had to take him in his school. फिर प्रभु ने उसको अपनी पाठशाला में लेना पड़ा. He brought him in his school. अपने पाठशाला में ले आए उसे. 20 years. 20 साल God taught him. प्रभु ने उसे सिखाया. ठोक ठोक के सिखाया. ठोक ठोक के सिखाया. ठोक के सिखाया. ठोक ठोक के सिखाया. और वो टेढ़ा सीधा हो गया यीशु के नाम. आमीन. I prophesy over you. मैं आपके ऊपर भविष्यवाणी करता हूँ That God will straighten you up. कि प्रभु आपको सीधा करेंगे. God will straighten up your family. प्रभु आपके परिवार को सीधा करेंगे. God has a school. परमेश्वर की पाठशाला है. It's the school of the Spirit. वो जो है आत्मा की पाठशाला है. Yeah. So this father, no? तो ये जो पिता है, I believe he must have trained up the child in the ways of God. मैं विश्वास करता हूँ प्रभु के मार्ग में उसने अपने बच्चे को प्रशिक्षण दिया होगा. But when the child began to grow, लेकिन जब वो बच्चा बड़ा होने लगा, the child became independent. बच्चा जो है आत्मनिर्भर हो गया. Okay, every parent हर एक माता पिता have to bring their child where the child becomes independent. उन्होंने अपने बच्चे को ऐसे स्थान पर लाना है जहां पर वो आत्मनिर्भर हो. Now listen to my statement very carefully. अभी जो मैं वाक्य कहूंगा बहुत ध्यान से सुनना. Independent आत्मनिर्भरता but dependent on God. लेकिन प्रभु पर निर्भर होना. Every parent, your success is bringing your child to a place of independence so that your child can depend on God. हर एक माता पिता की सफलता इस बात में है कि आप आपके बच्चे को जो आत्मिक निर्भर बनाओ, लेकिन वो प्रभु पर निर्भर रह पाए. I thank God because you teach your children, you put them in good school, you bring them up, you give them the best. Everything is good, but I want to tell you, the best thing you can give your child is make the child independent and dependent on Jesus. मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं आप सबके लिए, क्योंकि आप आपके बच्चों को जो है पढ़ाते हो, लिखाते हो, अच्छे शिक्षण देते हो, अच्छी स्कूल में डालते हो. लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं आप आपके बच्चों को ऐसे स्थान पर लाओ जहां पर वो आत्मनिर्भर हो, लेकिन वो यीशु पर निर्भर रहना सीखे. And the moment your child becomes dependent on Jesus, और जिस क्षण आपका बच्चा यीशु पर निर्भर रहना सीख जाएगा, your child will never leave you. आपका बच्चा आपको कभी छोड़ेगा नहीं. Don't be afraid to release your children. अपने बच्चों को आजाद करने के लिए डरो मत. But if they are connected to the Lord, लेकिन यदि वो प्रभु से जुड़े रहेंगे, they will turn around and take your hand. वो घूमेंगे और आपका हाथ पकड़ेंगे. Yeah. They'll take your hand. वो आपका हाथ पकड़ेंगे. But if they are not dependent on the Lord, लेकिन यदि वो प्रभु पे निर्भर नहीं होंगे, possibility is they will not catch your hand. तो संभवता यह है कि वो आपका हाथ नहीं पकड़ेंगे. So this father must have taken a lot of pain to train up the child. तो शायद इस पिता ने बहुत सारा दर्द उठाया होगा अपने बच्चों को प्रशिक्षण देने के लिए. But now the child
लेकिन अभी ये जो बच्चा है He's saying, no, I don't want. वो कह रहा है मुझे नहीं चाहिए अब, I want to go. मैं जाना चाहता हूँ, I want freedom. मुझे आज़ादी चाहिए। बहुत डेंजर होता है आज़ादी। आज़ादी बहुत खतरनाक होती है। आज़ादी बहुत डेंजर होता है। जब तेरे पीछे कोई लगा रहता है वो सबसे अच्छा चीज होता है। यस, आमेन। इसलिए चर्च में आना। यस, इट्स वेरी इजी टू रिजेक्ट योर चाइल्ड। बहुत आसान होता है अपने बच्चों का तिरस्कार करना। यू नो व्हेन? पता है कब? स्पेशली व्हेन दे आस्क योर प्रॉपर्टी। खास करके जब आपकी जायदाद वो मांगते हैं। प्लीज, आई वांट टू गिव यू अ वर्ड ऑफ, आई एम नॉट वाइज बट लेट मी गिव यू अ वर्ड ऑफ विजडम। मैं बुद्धिमान इतना नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको बुद्धिमानी का शब्द देना चाहता हूँ। प्लीज डोंट राइट योर प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ योर चाइल्ड बिफोर यू डाई। आप मरने से पहले अपनी जायदाद अपने बच्चे के नाम पे लिख मत देना। वहां ऐसा अच्छे से क्लियरली लिखना, मैं और मेरी पत्नी स्वर्ग जाने के बाद ही ये प्रॉपर्टी मेरा बच्चा ले सकता है। मैं नहीं बोल रहा, आप बोलो नहीं, मेरा बच्चा ना एकदम क्यूट है, एकदम देखो पास्टर कौन से भी एंगल से, ये प्रोडिगल भी कौन से भी एंगल से जब छोटा था ना वैसा नहीं लग रहा था। See, it's very easy to reject, बहुत आसान होता है तिरस्कार करना, especially when your children are going against. खास करके जब आपके बच्चे आपके खिलाफ जा रहे तो। Even after he gave the property, so, जायदाद देने के बाद भी still he respected his son. फिर भी उसने अपने बच्चे का आदर किया। But लेकिन deeply rejected his choice, his decision, his action. गहराई से उसका चुनाव, उसका कार्य और उसकी जो मनोभावना है उसको उसने तिरस्कार किया। He respected him उसने उसका आदर किया as a son. बच्चे के रूप में, But लेकिन he deeply rejected his choice, उसने उसके गहराई से चुनाव का तिरस्कार किया, his decision, उसके निर्णय का तिरस्कार किया and his action. और उसके कार्य का तिरस्कार किया। All parents should learn सारे माता पिता ने सीखना to है respect their child, अपने बच्चे का आदर करने के लिए, even when they are doing all tedagiri. जब वो सारी टेढ़ीगिरी कर रहे तभी भी। I know some of your children are after your property, मैं जानता हूँ आप में से कुछ लोगों के बच्चे आपकी जायदाद के पीछे है, but लेकिन number one, safeguard yourself. पहला नंबर अपने आप को सुरक्षित कर लो। और वो पेपर वगैरह जरा संभाल के रखना प्लीज, क्योंकि वो बच्चे चोरी करते हैं। नहीं पास मेरा ना एकदम क्यूट बेबी है, नहीं वो क्यूट नहीं, वो लाइंग बेबी है, सोता हुआ बेबी, सोता हुआ नहीं, झूठ बोलता हुआ झूठ बेबी है। अच्छा तू मुझे बता, तूने झूठ बोला है तेरे मम्मी पापा को? यस बस, कितने बार? याद भी नहीं। याद भी नहीं, वो ये बोला ना योर चिल्ड्रन आर नॉट क्यूट, वो झूठ बोलते हैं। आपके बच्चे क्यूट नहीं, वो झूठ बोलते हैं। और आप क्या बोलते हो? नहीं माझा मुलगा ना खोटं बोलू शकत नाही। आप क्या कहते हो ना, मेरा बेटा तो झूठ बोल ही नहीं सकता। वो अंदर जो पवित्र आत्मा ना उसको पूछ के देखो, हे सत्य के आत्मा आप क्या बोलते हो? वो बोलेगा बाबा तेरा बेटा तुझे मामू बना रहा है। क्या मैं नहीं बोल रहा है? You'll be shocked. आपको झटका लग जाएगा। या मुझे भी लगे, लेकिन मैं वापस खड़ा हो गया प्रभु के दया से। नंबर 4, चौथा नंबर, you know when your children do उल्टा, आपको पता है जब आपके बच्चे उल्टा ही करते कुछ, you know what you do normally? आमतौर पर आप क्या करते हो पता है? जामर। जामर। ऐसे कितने लोगों ने सुना है या आपने सुना है क्या? तेरे पेरेंट्स ने बोला जामर, ओके। और कोई है बच्चा? जामर, ओके। अच्छा कितने पापा लोगों ने बोला जामर अभी तू? When your children do टेढ़ागिरी ना, जब आपके बच्चे टेढ़ीगिरी करते हैं ना, it's time to stand up. ये समय उठ खड़े होने का। You know King David? आपको राजा दाऊद पता है? Before he became king, what was he? राजा बनने से पहले वो कौन था? Shepherd boy. चरवा लड़का था वो। So whenever a lion will come and pick up his sheep, तो जब कभी भी सिंह आकर उसकी भेड़ को पकड़ता था and he sees the lion taking the sheep and going, और वो देखता था सिंह जो भेड़ को लेके जा रहा है, what will he वो do? क्या करता था? He'll take a stick, वो अपनी छड़ी लेता था run behind the lion. और सिंह के पीछे दौड़ता था। When your children are walking away from the Lord, it's time to get up and become aggressive in the spirit and fight against the enemy of your soul. जब आपके बच्चे आप देखते हो परमेश्वर से दूर जा रहे हैं, तो ये समय उठ के खड़े होने का और उसका पीछा करने का पूरे गुस्से के साथ वो शत्रु के खिलाफ, और वो आपके बच्चे को खींच कर वापस लाना है। मैंने खींचकर वापस लाने का बोला नहीं, तूने डाला है।
मैंने सिर्फ बोला उसके पीछे जाने का। हम लोग जाते नहीं, हमको इतने बड़े 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 गांव लग गए, मुझे छोड़ के गया, मेरा घर लिया। You think this father, आप सोचो ये जो पिता है, what must have happened to his soul? उसके प्राण में क्या हुआ होगा? His son must have suck. उसके बेटे ने शायद उसको बहुत मारा होगा। One of the biggest job of a father is to safeguard his children from the enemy. पिता के बहुत सारे कामों में से एक काम जो है अपने बच्चों को शत्रु से बचा कर रखने का है। When your children are doing tedagari, it's time for you to stand because the enemy has caught your child in their jaw. जब आपके बच्चे टेढ़ेगिरी कर रहे हैं तो ये समय आप उठ के खड़े हो जाओ, क्योंकि शत्रु ने जो है उसके मुंह में उसे पकड़ के रखा है। 1 Samuel 17 verse 35. पहला शमूएल 17 में 35। My dad used to tell me, मेरे पिताजी मुझे कहते थे, no problem, you want to do evil now, go and do evil. तू बुराई करना चाहता है ना, जा जाकर कर। I also used to think, what a dad I have. मैं भी सोचता था कितने अच्छे पिता है। He never ran after me. वो कभी मेरे पीछे नहीं आए। हम लोग ये पापा के पीछे रहते हैं ना, हम क्या करेंगे ना, ये लड़का जाएगा ना, ये जा रहे जा उसके पीछे पीछे जाएगा, कुटा साला। He did not go behind him. वो उसके पीछे नहीं गए, He went behind the enemy. वो शत्रु के पीछे गया। हम इसको फोन लगाएंगे, उसको फोन लगाएंगे, देख मेरी बेटी किधर गई, मैं देख मेरी, अरे उधर मत लगा, वो आत्मा में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, आत्मा में तेरे बच्चे को खाने वाला है कोई तो भी। Come against your enemy. अपने शत्रु के खिलाफ आओ। So what did he do? तो उसने क्या किया? You know what David said? पता दाऊद ने क्या कहा? I went after that lion. मैं उस सिंह के पीछे गया। When any demon takes a hold of my child, जब कभी भी कोई दुष्ट आत्मा मेरे बच्चे को पकड़ती है, I am not going to go after my child. मैं मेरे बच्चे के पीछे नहीं जाने वाला, I'm going to go after that demon. मैं उस दुष्ट आत्मा के पीछे जाने वाला हूँ, Work of darkness. वो अंधकार के काम के पीछे जाने वाला हूँ, I will come against it. और मैं उसके खिलाफ आऊंगा। हम हमारे बच्चे को काउंसलिंग करते, काउंसलिंग करो बाबा, लेकिन काउंसलिंग का मौसम खत्म हो रहा है। It's time that you come against the enemy. हम हमारे बच्चों को सलाह देते रहे, आप देते रहो, लेकिन ये समय आ गया है कि आप शत्रु के पीछे लग जाओ। Yeah. So the sheep is in the mouth. तो जो भेड़ है उसके मुंह में है, He goes and boom. वो जाता है और उसे मारता है, बाहर निकालता है और वापस घर लेके आता है। आएगा क्या बच्चा? आएगा। Amen. आएगा क्या तेरा बच्चा? वापस आएगा। Amen. He will come back. वो वापस आएगा। Can I hear an amen there? क्या मैं आमीन सुन सकता हूँ? You're all with me? आप सब मेरे साथ हो? बाजू वाले को बोलना, गुस्सा ना दुष्ट आत्माओं पे निकालना है, बोलो। बाजू वाले को कहना, गुस्सा दुष्ट आत्माओं पर निकालना है। हाथ लगाओ। Great fathers are very compassionate. महान पिता बहुत तरस से भरे होते हैं। Yeah, that means they're very soft. इसका बहुत कोमल होते हैं वो। When they see trouble, जब वो तकलीफ को देखते हैं, their hearts begin to move. उनका हृदय जो हिलने लग जाता है। सबसे ज्यादा कौन से रोते हैं पता है क्या? मम्मी लोग नहीं, पापा लोग। पापा लोगों का रोना डीप होता है। उनको जाके ही पूछोगे, आप रो रहे हो क्या? नहीं, रो नहीं। मैं कहाँ रोता हूं, मैं इतना कड़क आदमी हूं। पापा लोग कुछ कड़क नहीं रहते, वो सिर्फ दिखाते हैं। क्योंकि अगर सब लोग रोने लगेंगे तो फिर घर कैसे आगे जाएगा? आमीन नहीं बोल रहा है। पापा लोग रोते हैं, लेकिन जब लोग नहीं देखते ना तब रोते हो, और नॉर्मली प्रभु के सामने रोते हैं। Now listen, compassion basically ना is a moving of the heart when it sees the need of a person. तरस जो है ना मुख्य रूप से ये हृदय का हिलना है, जब आप वो किसी व्यक्ति की जरूरत को देखता है। And it does not stop there. और वहीं पर नहीं रुकता वो, It goes and fulfills that need. वो आगे बढ़कर उस जरूरत को पूरा करता है। कोई आमीन नहीं बोल रहा है? That widow who lost her son, वो विधवा जिसने अपना बेटे को खोया था, when Jesus saw her, और जब यीशु ने उसे देखा, his heart was moved with compassion. उनका हृदय तरस से भर गया।
Not only tears came, सिर्फ आंसू आए इतना ही नहीं, but he said, don't worry. लेकिन उन्होंने कहा चिंता मत कर। Touch the child, बच्चे को छुआ, raise them up. उसे जिलाया, Miracle happened. चमत्कार हुआ। Every time compassion word comes, हर समय जब ये तरस शब्द आता है, there is a big miracle which happens from the Almighty God. सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर से एक बड़ा चमत्कार होता है। Oh, so what happened ना? ये जो लड़का है वो गया लड़का गया, और फिर वापस आया। वापस आया। अगले 6 महीने बहुत अच्छे महीने हैं, because many of your children are going to come back. क्योंकि आप में से बहुत लोगों के बच्चे वापस आने वाले हैं। हाँ, आमीन, दिल में आने वाले वापस। आमीन। वो आपके साथ रहते हैं लेकिन आपके साथ नहीं है। Your children, they may stay with you, but they are not with you. आपके बच्चे शायद आपके साथ रहते होंगे लेकिन आपके साथ हकीकत में नहीं है। But I am praying लेकिन मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, they will come back वो वापस लौट के आएंगे and be joined with your heart. और आपके दिल से जुड़ जाएंगे। May you have good testimonies. उन्हें तो आपके पास अच्छी गवाहियाँ हो, In the next 6 months, good testimonies. अगले 6 महीने में अच्छी गवाहियाँ, How God has turned the hearts of the children. कैसे परमेश्वर ने बच्चों के हृदय को मोड़ा है। Luke 15 verse 20. लूका 15:20। Yeah. So the father saw him. तो पिता ने उसे देखा, He was coming. वो आ रहा था, So he had compassion. तो उसे तरस आया, So he ran, तो दौड़ कर गया, fell on his neck. उसके गर्दन पर गिरा and गर्दन पर kissed गिरा। him. He kissed him. और उसे चूमा। Wow. गुस्सा था क्या पापा के अंदर? नहीं, ऐसा भी नहीं पापा ने बोला मुझे पता था तू वापस आने वाला है। हमारा डायलॉग ये है फेवरेट वाला। आप में से यहाँ से कोई कोई बच्चे लोग ऐसे भी यहाँ पे है जो घर छोड़ के 2 दिन बाहर थे, फिर तीसरे दिन आप आए तो आपके भाई ने आपको देख के बोला अरे मैंने तुझे पहले ही बोला ना मत जा, और आपकी माँ देखती आपको आई क्या, कोई कुछ नहीं बोलता है घर में, एकदम शांत। लेकिन यहाँ पे कुछ अलग है। यहाँ पे पापा दौड़े आए, आमीन। गले लगाया, किस किया, क्यों पता है? कंपैशन। तरस के कारण। और ये होने वाला है तुम्हारे परिवारों में, ये शुरू होने वाला है, ये वातावरण शुरू होने वाला है। आमीन। ग्रेट फादर्स दे रिस्टोर व्हाट देयर चिल्ड्रन हैव लॉस्ट। महान पिता जो होते हैं, जो उनके बच्चों ने गवाया है उसे पुनर्स्थापित करते हैं। वाओ, एक्चुअली फैमिली इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, परिवार जो है बहुत सुंदर बात है, बट द प्रॉब्लम इज फैमिली इज मेड ऑफ फुल ऑफ फैमिली इज फिल्ड विद सेल्फिश पीपल। लेकिन समस्या ये परिवार जो है ना स्वार्थी लोगों से पूरी तरह भरा हुआ है, सो दैट होल फैमिली डजंट वर्क। तो पूरा परिवार ठीक से काम नहीं करता। I pray if there is one father like what I'm talking, I pray your whole family will turn around for the glory of God. मेरी ये प्रार्थना है, यदि आपके घर में ऐसा है पिता हो जो मैं बात कर रहा हूं, तो पूरा परिवार जो परमेश्वर की महिमा के लिए मुड़ जाएगा। Yeah. Can I hear an amen there? Amen. Okay. Restore. Please write. Restore पुनर्स्थापित। means what you have lost, it will come back. पुनर्स्थापित का मतलब जो आपने गवाया है वो वापस आएगा। Wow. And fathers, great fathers, na? और महान जो पिता होते हैं, They love to give back what their children have lost. उनको बहुत अच्छा लगता है जो उनके बच्चों ने खोया है उन्हें वापस लौटाना। Restoration begins where there is repentance. पुनर्स्थापना जहां पर पश्चाताप होता है वहां से शुरू होती है। हाँ, वापस एक बार बोलता हूं and I want to say it very clearly. और मैं फिर से एक बार स्पष्टता से कहना चाहता हूँ, Restoration begins where there is repentance. जहां पर पश्चाताप होता है वहां से पुनर्स्थापना की शुरुआत होती है। Can I hear an amen? आमीन। Now listen. अभी सुनिए, When the child came back, जब बच्चा वापस आया, you know, what was in his mind, you know? उसके मन में क्या था पता है? I've done wrong. मैंने गलती की है, Let me go back to my father. मुझे अपने पिता के पास लौट के जाने दो। And I'm going to tell him, और मैं जाकर उनसे कहूंगा, consider me as a servant. मुझे अपना सेवक के रूप में समझो। Then he met the father, फिर उसके पिताजी से वो मिला, hugged him, गले लगाया and he told his father, और अपने पिता से कहा उसने, I have sinned against you. मैंने आपके खिलाफ पाप किया है, Please accept me as a servant. कृपा करके एक सेवक के रूप में मुझे स्वीकारो। Everybody is listening to me. सब लोग मुझे सुन रहे हो? Yeah. He's talking servant, 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 servant. वो सेवक 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 कह रहा है। वो घर क्यों आया पता है?
अब वापस जायदाद के लिए नहीं आया है। घर क्यों आया पता है? क्योंकि उसको पता है मेरे पापा ना बहुत अच्छे हैं। Amen. Because his heart was telling him that even the servants in our home, they have more than enough. क्योंकि उसका दिल उससे कह रहा था हमारे घर में, पिताजी के घर में जो सेवक है उनके पास जरूरत से ज्यादा है। मैं नौकर बन के रहूंगा, बहुत अच्छा है। वाह, ठीक है, ऐसा पापा मुझे कभी मिलेगा नहीं। अभी पापा छोड़ दो, ऐसा आदमी मुझे नहीं मिलेगा। Amen. I will not get a man like this. मुझे ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा। Good news. खुशखबर, Your children are coming back. आपके बच्चे लौट के आ रहे हैं। Good news. खुशखबर, Your children are coming back. आपके बच्चे लौट के आ रहे हैं। Good news. खुशखबर, God is going to work on the fathers. प्रभु पिताओं पर काम करने वाले हैं। And good news if you don't have a father. और खुशखबर, यदि आपके पिता नहीं है God will send people who will be like a father to you. तो प्रभु आपके पास ऐसे लोग भेजेंगे जो आपके लिए पिता समान होंगे। If you don't have a father, यदि आपके पिता नहीं है, don't worry. चिंता मत करो, God will send father-like people. प्रभु जो है पिता जैसे लोग भेजेंगे। Can I give you some example? उदाहरण दूं आपको, Esther did not have father and mother. एस्तर के माता पिता नहीं थे, So God sent a beautiful man called Mordecai. तो परमेश्वर ने एक सुंदर व्यक्ति को भेजा जिसका नाम था मुर्देकाई। Jesus did not have a physical father, यीशु के शारीरिक पिता नहीं थे, but God gave him a beautiful stepfather. लेकिन ये परमेश्वर ने उसे अच्छे सौतेले पिता दिए। You know what was his name? पता है उसका नाम क्या था? Joseph. यूसुफ। Some of you are like Joseph. आप में से कुछ लोग यूसुफ के जैसे हो। You're not big, you're not a big famous person. आप बहुत बड़े मशहूर व्यक्ति नहीं हो, No problem. कोई समस्या नहीं। सिंपल पापा बने रहो। मैं तुझे कहता हूं, प्रभु तुझे देखकर बोलेगा वेल डन, वेल डन, प्रभु कहेंगे शाबाश, वेल डन, वेल डन। You don't need to be a famous father. आपको मशहूर पिता होने की जरूरत नहीं है, You have to be a great father. आपने महान पिता होना जरूरी है। पापा फोन कर लो, अब भी नहीं, फोन कर लो, बात कर लो। रुकना नहीं उनके मौत के लिए। मौत के बाद में कितना भी तुम बोलोगे ना, पापा मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूं, गए। जो बोलना अभी बोल दो, जो गिफ्ट देना अभी दे दो, जो पैर दौना बहाना है अभी कर लो। मैं लोगों को देखता हूं, जब लोगों का मौत होता है बहुत रोते हैं और बहुत बोलते हैं, इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने ऐसा किया। मैं बोलता गप रहा तू, मैं कहता चुप रहे तू, कुछ फायदे का नहीं, वो कुछ नहीं सुन सकता है, कुछ नहीं सुन सकता, वो गया। लोगों का उत्सव कब मनाना है पता ना? जब वो जिंदा रहते हैं। ग्रेट फादर्स सेलिब्रेट देयर चिल्ड्रन। महान पिता अपने बच्चों का उत्सव मनाते हैं। अच्छा, ये पापा ने क्या किया पता है? अपने बेटे के नाम पर एक बड़ी पार्टी बनाई। यस, जहां पश्चाताप होता है ना, वहां आनंद होता है। आमेन। Where there is repentance, जहां कहीं पश्चाताप होता है there is celebration. वहां उत्सव मनाया जाता है। Let me give you a verse. एक वचन देता हूं आपको, Luke 15 लूका 15वां अध्याय verse 10. वचन 10। Jesus said, यीशु ने कहा, there is joy in the presence of the angels when one sinner repents. स्वर्गदूतों की उपस्थिति में आनंद होता है जब एक पापी पश्चाताप करता है तब। So, where is joy? तो आनंद कहां पर है? Where there is repentance. जहां कहीं पश्चाताप है वहां आनंद है। So when your child turns around, तो जब आपका बच्चा मुड़ता है small little things, छोटी छोटी चीजों से, you should make a big celebration. आपने बहुत बड़ा उत्सव मनाना है। अगर तेरा बच्चा, आपको पता चला कि अभी झूठ नहीं बोल रहा है, उसको बोलना चल चल आजा 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 मैकडी में जाएंगे। अरे पापा किधर लेके जा रहे? Our problem is हमारी समस्या है we are not celebrating our children. हम हमारे बच्चों का उत्सव नहीं मना रहे। उसने इतना बड़ा सेलिब्रेशन किया, इतना बड़ा लाइट वगैरह और बड़ा बैंड बाजा, और जितना बड़ा पता नहीं, आई डोंट नो व्हाट ही किल्ड, मुझे नहीं पता क्या मारा था उसने, हाँ जो भी काफ वगैरह जो भी मारा है, बछड़ा मारा था। हाँ एकदम। तभी इसका एक भाई था, एक बड़ा वाला, शाम को आ रहा तो आवाज सुन रहा है। बाद में वो बोला मैं अंदर नहीं आ रहा हूं। तो उसने पूछा क्या हो रहा है, इतना क्या है शोर शराबा?
बोला नहीं, आपके जो भैया थे ना छोटे वाले, वो वापस घर आए तो आपके पापा ने एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन चालू किया है। क्या सेलिब्रेशन? वो पापी के लिए? हाँ, पापी अभी पश्चाताप करके घर आया है, Amen. इसलिए उत्सव मनाया जा रहा है। Amen. Can I hear an amen? क्या मैं आमीन सुन सकता हूँ? May God bless all the fathers. प्रभु सारे पिताओं को आशीषित करे। Yeah.